Students, in today class, we will discuss one more concept which is related to our Lego programming. So our today topic is totally about loop interrupt block. As you all know, we have so many blocks at the downside of the software, and in which we have already learned many blocks. But our today topic is related to loop interrupt block. Firstly, I would like to introduce you loop interrupt block, which is available in flow control block. As you can see, this is the action block, flow control block, sensor block, and data operation block, advanced block, and my block. तो यहाँ पर हमारा जो flow control block है, which is in yellow color, we will click on that, and after that we will receive 2-3 blocks here, like start block, wait block, loop block, switch block, and the last one is loop interrupt. So today we will discuss all the things about this block. तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो इस ब्लॉक के बारे में सीखने वाले हैं, और आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है. It looks like this one, right? As you can see, this is the loop interrupt block. So firstly, I will tell you what is the loop interrupt block. Basically, loop interrupt block makes a loop block end. Loop block end means आप जो भी loop लगाते हैं, loop means किसी भी task को repetitively करना, right? Continuously आप किसी task को अगर repeat कर रहे हैं, that is loop. अगर आप किसी टास्क को लूप में करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार किसी रोबोट को स्ट्रेट लेके जा रही हूँ, बैक लेके जा रही हूँ, स्ट्रेट लेके जा रही हूँ, बैक लेके जा रही हूँ, इसी काम को मैं 10 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ और मोर देन 10 टाइम्स रिपीट कर रही हूँ, दैट मीन्स वो एक लूप में काम हो रहा है, रेपिटेडली काम हो रहा है. तो उस रिपीटेटिव टास्क को एक लूप में हम डाल करके अपने टास्क को इजी बना लेते थे. तो आज उसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी लूप ब्लॉक को मैं एंड करना चाहती हूँ, फिनिश करना चाहती हूँ, देन आई कैन यूज दिस ब्लॉक, लूप इंटरप्ट. नो मोर ब्लॉक्स इन द लूप सीक्वेंस will execute and the program will continue with any block that are after the loop. अगर कोई और आपका लूप सीक्वेंस में कोई भी अगर आपका ब्लॉक है, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट? और उसके बाद के लूप के बाद के जितने भी ब्लॉक्स हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगे, अपना काम कर पाएंगे. यू कैन स्पेसिफाई विच लूप ब्लॉक टू इंटरप्ट बाय यूजिंग इट्स लूप नेम. अब आप किसी भी स्पेसिफिक लूप को कैसे इंटरप्ट करना चाहते हैं, कैसे इंटरप्ट करेंगे, दैट आई विल टेल यू टुडे. You can use the loop interrupt block to make a loop exit sooner. That is normally would. Or in response to a different condition, you can interrupt a loop from inside the loop itself. आप loop को loop से बाहर से भी उसको interrupt कर सकते हैं, even loop के अंदर भी loop को interrupt कर सकते हैं. और from another block sequence that is running at the same time. अगर कोई दूसरा आपका loop sequence run कर रहा है तो आप वहां पर भी उसको यूज कर सकते हैं, right? तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, so I will tell you by the help of proper example. Like अगर मैं कोई भी मल्टीपल टास्क कर रही हूँ, मेरा जो रोबोट के लिए मैंने रेडी किया है प्रोग्राम, उसमें मैंने 2 टास्क पैरेलली बनाए. Like first I want to create a sound through my robot and I want to set here another sound
like start. Start. And after that, I want my robot will move forward for a one rotation. Correct? और यही टास्क एटलीस्ट 6 टाइम्स रिपीट हो या अनलिमिटेड टाइम रिपीट्स हो, तो वो मैं चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आई वॉन्ट टू पुट द सेम कोड इन अ लूप. करेक्ट? I want to put the same code in a loop like this. So ये कोड जो होगा या तो आपका अनलिमिटेड टाइम रन होगा, या आप इसको कोई पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन दे सकते हैं, लाइक 4 टाइम्स और 6 टाइम्स और 10 टाइम्स, whatever you want to give, you can put here. At the same time, I want my robot will do one more task that is related to touch sensor. कि वो साथ के साथ क्या करे, वो ऑब्जेक्ट भी डिटेक्ट करे कि कहीं किसी ऑब्जेक्ट से जैसे ही वो टच होता है उस टास्क को भी वो पैरेलली करे. सो आई कैन यूज टच सेंसर. करेक्ट? तो यहां पर मैं इसको एक और प्रोग्राम में क्रिएट करी हूं. दिस इज अनदर टास्क. तो यहां पर क्या होगा, अगर मैं इसको इसके साथ कंटिन्यू करती हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां से इसके साथ एड ऑन करती हूं like this, so my robot will confuse कि वो कौन से टास्क को, क्योंकि एक साथ स्टार्ट होंगे तो वो कंफ्यूज होगा कि ये वाले टास्क को वो स्टार्ट करे या ये वाले टास्क को वो स्टार्ट करे. और अगर इन केस मैं इसको अलग प्ले बटन के साथ एड ऑन करती हूं, तो क्या होगा कि जब तक ये वाला कोड रन होगा, ये कॉन्टिन्यूअसली इसको रन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तब तक जब तक कि मैं इसको स्टार्ट नहीं करती. करेक्ट? तो यहां पर लूप इंटरप्ट हमारी हेल्प करता है कि अगर आपने कोई भी पर्टिकुलर लूप को एग्जीक्यूट किया हुआ है, अब वो एक लूप भी हो सकता है, मोर देन वन लूप भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा लूप भी हो सकते हैं, और आप अगर कोई पर्टिकुलर नेक्स्ट टास्क रन कर रहे हैं तो वहां पर आप उस टाइम पर दूसरे लूप को इंटरप्ट कर देंगे, यानी कि स्टॉप कर देंगे. करेक्ट? तो आपका जो बाकी रिमेनिंग कोड है वो रन करेगा. कैसे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक अ लूप इंटरप्ट ब्लॉक, and the loop interrupt block has a single mode. As you can see here, mode is single, that is loop interrupt. The block text field at the top of the block display the loop name of the loop to interrupt. यहां पर आपके पास दो ही चीजें होंगी, वन इज मोड एंड अनदर वन इज ब्लॉक फील्ड. ब्लॉक फील्ड आपको प्रोवाइड करता है आपके लूप का नेम. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा यहां पर तो हम यूज करते थे लूप टाइमिंग, एंड हियर इज द ऑप्शन दैट इज योर लूप नेम. If you will provide the value here like 2, so that time your loop name is 2. If you are providing the value here 3, that time your loop name is 3. Whenever you want to stop it, whenever you want to interrupt it, so you have to provide the value here, your loop name here in the block field. आपको क्या करना होगा, वही वैल्यू को जो आपके लूप का नेम है जिसको आप इंटरप्ट करना चाहते हैं, यू हैव टू पुट हियर. आपको यहां पर वो वैल्यू पुट करनी है. इफ यू वांट टू पुट 02, तो अभी यहां पर कोई 02 नाम का कोई भी ब्लॉक नहीं है, लूप नहीं है, तो वो आपको वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं कर रहा है. अब फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर एक और लूप क्रिएट कर देती हूँ. लाइक यहाँ पे एक और लूप है जिसका नेम 1 है, यहाँ पर लूप क्या है 3. अब अगर मैं लूप 3 को इंटरप्ट करना चाहती हूँ, सो I will provide the value 3 here. If I want to interrupt the loop number 1, so I can put the value 1 here. So we have option
like 01, 02, 03, whatever name of your loop you can put here. करेक्ट? तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, बाय नेम आप अपने लूप को इंटरप्ट करेंगे, बाय नेम आप अपने लूप को स्टॉप करेंगे. When you click on this block field, here is a block field. When you click on the block text field to display the pop-up menu, this one is the pop-up menu. इसको क्या बोलते हैं, pop-up menu. The pop-up menu will list the names of the loop block. जितने भी loop blocks हैं उन सबके नेम आपको प्रोवाइड करेगा, लाइक 01, 03. अगर यहाँ पर और भी कोई लूप होगा तो उसका नेम भी लिस्ट में आ जाएगा, पॉपअप मेन्यू में आ जाएगा. एंड सेलेक्ट द नेम ऑफ द लूप. आपको क्या करना है, आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट द नेम दैट यू वांट टू इंटरप्ट फ्रॉम द लिस्ट. आप अपनी लिस्ट से जिसको इंटरप्ट करना चाहते हैं, लाइक अगर मैं लूप नंबर 1 को करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर उसको सेलेक्ट करूंगी, और अगर मैं लूप नंबर 3 को इंटरप्ट करना चाहती हूँ तो मैं अपनी लिस्ट से 3 को सेलेक्ट करूंगी, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस टू यूज द लूप इंटरप्ट ब्लॉक. When the loop interrupt block execute, अब जिस टाइम पर आपका प्रोग्रामिंग में से ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, द स्पेसिफाइड लूप, जो भी स्पेसिफाइड लूप है, दैट मीन्स जिस लूप के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसको आपने इंटरप्ट में डाला है, दैट लूप विल एंड इमीडिएटली. इमीडिएटली, राइट? एकदम से आपका लूप क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, एंड हो जाएगा. And the program will skip to any block that are after the loop. जिस टाइम आप इसको इंटरप्ट में डालेंगे, आपका क्या होगा कि ये प्रोग्राम अपने एग्जीक्यूशन से आउट हो जाएगा और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा उसको रन करना स्टार्ट कर देगा. अदरवाइज अभी तक क्या होता कि आपका रोबोट कॉन्टिन्यूसली गो स्टार्ट साउंड क्रिएट करता, 1 स्टार्ट साउंड चलता रहता, स्टार्ट साउंड चलता रहता, ठीक है? तो यहाँ पर ये काम ये कंटिन्यूअसली चलता रहता और ये स्टॉप नहीं होता, तो तब तक जब तक आप उसको खुद से स्टॉप नहीं करते. अब क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पे लूप इंटरप्ट 3 डाला है, आपका ब्लॉक ऑटोमेटिकली स्टॉप होगा और आपका जो सेकंड कोड है वो रन हो जाएगा. इसके बाद लूप के बाद जितना भी कोड होगा वो रन हो जाएगा और आपके लूप से वो बाहर आ जाएगा. करेक्ट? सो दिस इज द वे वी कैन यूज लूप इंटरप्ट ब्लॉक in our programming, and it is a very very useful part because sometime हमारे पास बहुत सारे loops होते हैं within the code, within the program, and we can change the conditions according to our requirement. So we can do by the help of this block, and it is available in orange color block, which is flow control block. I hope that point is clear to you.